مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، بہت ہی خوبصورت تھی وہ۔ میں اس کو پانا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی لیکن مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا۔ میں روزانہ اس لڑکی کو کہتا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ جواب دیے بغیر چلی جاتی۔ ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر ایسی جگہ لے گئی جہاں شریف لوگوں کا جانا سختی سے منع ہے، اور وہاں جا کے میرے سامنے ایسا کام کیا کہ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ وہ تو کالج جاتے ہوئے روز ایک لڑکی مجھے گاڑی میں نظر آتی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کے چہرے سے میری نظر ہی نہ ہٹتی تھی۔ مجھے خود بخود اس کی جانب کشش محسوس ہوتی اور میں اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا۔ ایک دن بہت ہمت کر کے میں نے اسے اپنے دل کا حال کہہ دیا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بنا ہی چلی گئی۔ وہ میرا کالج آنے سے ایک سٹاپ پہلے اتر جایا کرتی تھی اور میں اسے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک دیکھتا ہی رہتا۔ آج اسے پرپوز کرنے کے بعد تو میں پوری طرح بے چین ہو گیا تھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ کالج پہنچ کر بھی میں پوری طرح اس کے خیالوں میں مگن تھا، اور یہ سوچ سوچ کر میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ اگلے دن گاڑی میں بیٹھے گی بھی یا نہیں۔ میں کالج سے گھر واپس آیا تو میرے گھر میں میری بڑی بہن کی شادی کا شور اٹھا ہوا تھا۔ میری بڑی بہن کا رشتہ خالہ کے گھر سے آیا تھا۔ خالہ کا بیٹا پڑھا لکھا تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا، لیکن جس بات نے مجھے پریشان کر دیا وہ یہ تھی کہ خالہ نے ساتھ ہی اپنی بیٹی کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ابھی تک اماں نے خالہ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ پہلے مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی اور میں نے اس رشتے کا سن کر صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میرا دل تو اس گاڑی والی لڑکی میں ہی اٹکا ہوا تھا جس کے نام سے بھی میں انجان تھا۔ لیکن میری بہن خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ تھا، اسی لیے میں پوری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ میری اماں کہنے لگی کہ بیٹا انکار کی کوئی وجہ بتاؤ تاکہ تمہاری بہن کا رشتہ علی کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ میں تمہاری خالہ کو کوئی معقول وجہ دوں گی تو ہی علی اور فرح کا رشتہ طے کریں گی۔ میرے پاس فی الحال اماں کو بتانے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ میں تو اس لڑکی کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ پتہ تو بہت دور کی بات تھی، اور اس نے میرے پرپوزل کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور جب میری اچھی نوکری ہو جائے گی تبھی میں شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ اماں کہنے لگی کہ ابھی تو ہم صرف رشتے کی بات کر رہے ہیں، شادی تو تمہاری اچھی نوکری لگنے کے بعد ہی ہوگی۔ اماں ہر صورت فرح اور علی کا رشتہ طے کرنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں مجھے قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ خالہ سے بات کریں اور فرح اور علی کا رشتہ طے کر دیں، مجھے فی الحال شادی کے معاملات سے دور رکھیں۔ اماں مجھ سے ناراض ہو کر میرے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب اماں ایک ہی صورت میں مانیں گی، جب میں شادی کے لیے ہاں کر دوں گا یا انہیں کوئی دوسری وجہ دوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس لڑکی سے پہلے جواب حاصل کروں گا، پھر ہی اماں سے کوئی بات کروں گا۔ اگلے دن میں کالج جانے کے لیے گھر سے نکلا تو اماں اس وقت بھی مجھ سے ناراض ہی تھی اور بات نہیں کر رہی تھی، لیکن فرح باجی نے مجھے کہا کہ میری وجہ سے تم اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ نہ کرنا، جس میں تمہاری خوشی ہو تم وہی فیصلہ کرنا، میرے نصیب میں جو ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ فرح باجی کی بات سن کر میں کچھ مطمئن ہو گیا تھا، اور جیسے ہی گھر سے نکل کر گاڑی میں سوار ہوا تو یہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا کہ وہ آج بھی مجھ سے پہلے ہی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے روز صبح کہاں سے آتی تھی، لیکن اس کا اور میرا وقت ایک ہی تھا۔ میں پچھلے 6 مہینے سے اسے روزانہ گاڑی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے کالج سے ایک سٹاپ پہلے ہی ایک اچھی سوسائٹی میں اتر جاتی تھی۔ میں نے اس کی پیچھے والی سیٹ لی اور بیٹھتے ہی اسے کہا کہ آج آپ میرے سوال کا جواب دے کر جانا۔ اس نے میری بات سن لی تھی لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ میں سارا رستہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ لوگوں کے خوف سے میں اس سے سیدھی بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر کسی کو بھی ایسا محسوس ہوتا کہ میں اسے تنگ کر رہا ہوں تو لوگ مجھے وہیں مارنا شروع کر دیتے۔ اس کا سٹاپ آ گیا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر ہلکی آواز میں اس سے پوچھا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بنا ہی اتر گئی۔ میرے دل میں عجیب سی اداسی چھا گئی۔ وہ لڑکی عمر میں مجھ سے بڑی معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی مجھے بے خود کر دیتی تھی۔ وہ سارا راستہ نظر جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ اس کے پاس کوئی اسکول یا کالج کا بیگ یا کتابیں موجود نہیں ہوتی تھیں۔ شاید وہ کہیں نوکری کرتی تھی۔
मुझे अम्मा को कोई माकूल जवाब देना था, लेकिन उस लड़की से आज भी जवाब ना पाकर मैं खाली ही हाथ अम्मा के पास घर लौटा था। मैं सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहा और खाने के दस्तरखान पर भी न गया। मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई थी। इश्क ने मुझे दीवाना बना दिया था। फराह बाजी रात गए मेरे कमरे में आई तो मुझे जागते हुए देखकर कहने लगी कि वो कौन है जिसके इश्क में तुम इतने मजनू बन गए हो कि तुम्हें भूख भी नहीं लगी। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी और वो जानती थी कि मुझे खाली पेट नींद नहीं आती, इसलिए खाना लेकर मेरे कमरे में ही चली आई थी। न जाने क्यों मुझे अपनी बहन से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसका रिश्ता मेरी वजह से अटका हुआ था। फराह बाजी मुझे खुद ही अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। मैं उनका छोटा भाई था, उन्हें मेरी बहुत परवाह थी। वो घर में सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करती थी। वो मुझसे कहने लगी कि उस लड़की का नाम तो बताओ जिसके लिए तुम दीवाने हो गए हो। मैंने हैरानगी से फराह बाजी की तरफ देखा तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला है, ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारी आंखों को ना पढ़ सकूं। मैंने फराह बाजी को सारी बात बता दी थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम कॉलेज के बजाय उसके पीछे गाड़ी से उतर जाना और किसी ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो देखकर उससे तरीके से बात कर लेना, या फिर अगर वो अपने घर जा रही हो तो उसका घर दिखाना। मैं खुद जाकर तुम्हारे लिए उससे बात करूंगी। फराह बाजी की बात ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी थी कि मैं उस लड़की से कम उसका नाम और पता पूछा था। बाबा जी ने मुझे सोने का कहा, फराह बाजी ने मुझे सोने का कहा और कमरे से चली गईं। मैं उनके जाने के बाद सारी रात बिस्तर पर लेटा आने वाले दिन के बारे में सोचता रहा कि किसी न किसी तरह तो उनसे बात करनी ही है। मामूल के मुताबिक जब मैं सुबह बस में चढ़ा तो वो आज भी पहले से ही बैठी हुई थी। आज मैंने गाड़ी में उससे कोई बात नहीं की और जब वो हमेशा की तरह अपने स्टॉप पर उतरी तो मैं भी उसके पीछे ही उतर गया। मैं दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ आगे जाकर वो खुद ही रुक गई थी और पलटकर मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ, लेकिन वो शायद खुद वीरान जगह का इंतजार कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने उसे कहा कि वो मुझे सिर्फ अपना नाम पता बता दे, मैं खुद अपनी बाजी को रिश्ता देकर उसके घर भेज दूंगा। उसने कहा कि वो अभी मुझसे कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन वो मुझसे रात में मिलना चाहती है और वो उस मुलाकात में मेरे तमाम सवालों के जवाब दे देगी। ये सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं उसका इंतजार करूंगा। उसने मुझे एक पता दिया और कहने लगी कि वो रात 10 बजे मुझे ठीक इस जगह पर मिलेगी। उसने अपना रास्ता लिया था और मैं पलटकर कॉलेज की तरफ चल आया था, क्योंकि मेरे इम्तिहान शुरू होने वाले थे, लेकिन मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मैं सारा दिन रात होने का इंतजार करने लगा। मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो गया था। मैंने सारा दिन यहाँ से वहाँ चकराते हुए गुजारा और रात होते ही 10 बजने से पहले उसके बताए पते पर पहुँच गया। ये जगह शहर से कुछ हटकर थी और यहाँ रश ना होने के बराबर था। मैं वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगा। उसने मुझे एक छोटे से होटल के बाहर बुलाया था। 10 बजे के करीब वो गाड़ी से उतरकर मेरे पास चलती हुई आई और वो काफी तैयार थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमेशा की तरह आज भी उसने बुर्का पहना हुआ था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम तो वक्त के बड़े पक्के निकले। मैंने भी मुस्कुराहट में जवाब देते हुए कहा कि मैं तो सुबह से इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लिए चलने लगी। उसके नरम नरम हाथों के लम्स ने मेरे अंदर जैसे जिंदगी की एक नई हरारत डालती थी। मैं उसके पीछे पीछे कदम उठाते उससे पूछने लगा कि मुझे अपना नाम तो बता दो। वो अपनी मीठी सी आवाज में कहने लगी कि उसका नाम चांदनी है। उसका नाम भी उसकी तरह ही खूबसूरत था। मैंने ज़ेरे लब उसका नाम बुड़बुड़ाया तो मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। मैंने चांदनी से पूछा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। वो कहने लगी कि आज रात मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगी, बस थोड़ा सब्र कर लो। वो मेरे साथ चलते चलते जिस इलाके में पहुंच गई, वो जगह हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। उस मोहल्ले के दरवाजे पर पहुंचकर मैं चौंक उठा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि चांदनी मुझे यहाँ लेकर आएगी। कोई भी शरीफ शख्स ऐसे मोहल्ले के दरवाजे के पास भी नहीं भटकता और मुझे लेकर वो उस मोहल्ले में दाखिल हो गई थी। मेरे लिए कदम उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने चांदनी से कहा कि वो मुझे यहाँ क्यों लाई है, लेकिन चांदनी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे लेकर एक हवेली नुमा इमारत में दाखिल हो गई।
अंदर दाखिल होते ही तबले की थाप और घुंघरू की झनकार से मुझे घबराहट होने लगी थी। चांदनी मुझे एक कालीन पर पड़े कुशन पर बिठाकर वहां से चली गई। वहां और भी मर्द बैठे हुए थे। वो कहने लगी कि तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, तुम्हें खुद तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं चांदनी को रोकना चाहता था, लेकिन वो मुझे बिठाकर चली गई और थोड़ी ही देर बाद मैंने उसे अपने सामने देखा। वो बहुत ही भारी सा जोड़ा पहनकर पैरों में घुंघरू बांधकर 2 और लड़कियों के साथ रक्स करने में मसरूफ हो गई थी और मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। तबले की थाप पर उसके पांव बहुत तेजी से थिरक रहे थे। वो 1 घंटे तक बिना रुके नाचती रही और वहाँ मौजूद सब लोग उस पर पैसा लुटाते रहे। 1 घंटे के बाद उसकी जगह किसी दूसरी लड़की ने ले ली और वो वहाँ से हटकर अंदर चली गई। थोड़ी ही देर बाद उसका बुलावा आया और जब मैं उसके पास गया तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, आज तुम चांदनी की हकीकत जान गए हो तो यकीनन तुम्हारी मोहब्बत का किस्सा भी तमाम हो गया होगा। तुम सुकून से अपने घर जाओ और आराम करो। मुझे उम्मीद है कि आइंदा तुम मेरा रास्ता नहीं रोकोगे। मैंने चांदनी से पूछा कि वो ये काम क्यों करती है। चांदनी ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा कि कोई भी लड़की इस मकाम पर बहुत ही मजबूरी में पहुंचती है और मैंने भी बहुत मजबूरी में ही इस रास्ते को इख्तियार किया। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद मैं और मेरे भाई बहन एक पाकाज़दा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। मेरी माँ एक बीमार औरत थी और खानदान वालों ने हमें पलट कर नहीं पूछा था। मैंने बहुत जगह नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी तालीम ना होने की वजह से मुझे कोई नौकरी ना मिली। और एक दिन जब मैं नौकरी ढूंढने की गर्ज से एक दफ्तर में गई तो वहाँ के मालिक ने मेरी मजबूरी का पूरी तरह फायदा उठाया और नौकरी का झांसा देकर मुझे अपने बिस्तर की जीनत बना लिया। मैंने अपनी इज्जत को इस आस पर दांव पे लगाया था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मेरे भाई बहनों का भला हो जाएगा, मेरी माँ का इलाज मुमकिन होगा। लेकिन उस शख्स ने तो अपनी सारी हदें पार करने के बाद सुबह मेरे मुंह पे चंद नोट मारे और ये कहकर मुझे निकाल दिया कि जब भी पैसे चाहिए हों मैं उसके बिस्तर पर आ जाऊं। मैं सुबह सवेरे मुट्ठी में चंद नोट दबाए उस शख्स के फ्लैट से निकली और लड़खड़ाती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। जब भी मुझे वहाँ एक औरत मिली वो मेरी हालत देखकर जान गई कि मैं किस कर्ब से गुजरी हूँ। उसने मुझसे कहा कि ये दुनिया हम जैसी औरतों पर रहम नहीं खाती बल्कि हमें नोच कर खाती है। वो औरत मुझे उस जगह पर लाई और यहाँ मुझे रक्स करने का काम दिलवाया। मैं रोज रात को 10 बजे यहाँ आ जाती हूँ और सारी रात रक्स करके इतने पैसे कमा लेती हूँ कि मैं अपनी माँ का इलाज भी करवा लेती हूँ और अपनी बहन भाइयों को अच्छी तालीम भी दिलवा रही हूँ। मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं जानता कि मैं क्या काम करती हूँ। मेरे भाई बहनों को भी ये मालूम है कि मैं रात को किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। अब जबकि मैंने तुम्हें हर बात सच बता दी है तो बेहतर यह है कि तुम अपने घर लौट जाओ। उसे दोबारा से रक्स करने के लिए जाना था। वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई और मैं खामोशी से उसको जाता हुआ देखता रहा। मैं बहुत ही मुश्किल से कदम उठाता हुआ अपने घर चला आया। मेरी आंखों के आगे चांदनी का वजूद छा गया था। चांदनी को यकीन था कि उसके रास्ते में मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मैं जिस कदर उससे मोहब्बत करता था मेरे लिए उसे भूल जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैं बिस्तर पे लेटा चांदनी के बारे में सोच रहा था जब फराबाजी कमरे में चली आई और पूछने लगी कि उस लड़की से मुलाकात कैसी रही। मैंने जाने से पहले उन्हें बता दिया था कि मैं उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ। मैं उठकर बैठ गया। मैंने फराबाजी को बताया कि उसका नाम चांदनी है और वह बहुत ही अच्छी है। फराबाजी कहने लगी कि ये तो बताओ कि उसने तुम्हें क्या जवाब दिया। मैंने कहा, बाजी वो रात भर एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और सुबह अपने घर वापस जाती है। उसके घरेलू हालात अच्छे नहीं, इसीलिए उसे नौकरी करनी पड़ती है। वो एक यतीम लड़की है। फराबाजी कहने लगी, इसमें बुराई ही क्या है, उसने मजबूरी में ही नौकरी की है। मैंने फराबाजी से कहा कि मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ कि मैं उसको कबूल कर सकता हूँ या नहीं। फराबाजी कहने लगी कि जब तुम उससे मोहब्बत करते हो तो इतनी सोचने वाली क्या बात है। वो जो भी कर रही है मजबूरी में कर रही है। शादी के बाद तुम उसके घर वालों का खर्चा उठा लेना तो वो भी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार लेगी। मैंने फराबाजी को चांदनी की असल हकीकत नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पहले अपने दिल से ये सवाल करना था कि क्या मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बीवी बना सकता हूँ जो पिछले कई सालों से सारी रात गैर मर्दों के आगे नाचती रही है। मैं सुबह तक यही सोचता रहा और फजर की अजान पर मैंने उठकर नमाज अदा की। नमाज के बाद दुआ मांगते वक्त मुझे शिद्दत से ये एहसास सताने लगा कि जब खुदा बंदे के
इतने गुनाह माफ कर सकता है तो बंदा क्यों किसी दूसरे बंदे के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकता। चांदनी ने एक गलत रास्ता जरूर इख्तियार किया था, लेकिन क्या जरूरी था कि वो सारी जिंदगी उसी गलत रास्ते पर चलती रहे। उसे यह रास्ता चुनने के लिए भी हमारे माशरे के चंद भेड़िए नुमा मर्दों ने ही तो मजबूर किया था। मेरे दिल ने इस बात की गवाही दी थी कि चांदनी एक अच्छी लड़की है और उसने मजबूरी में ये रास्ता इख्तियार कर लिया है। और अब जबकि मैं उससे मोहब्बत करने लगा था तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसे बुराई के इस रास्ते से रोक लेता। मैं सुबह कॉलेज आने के वक्त बस में सवार हो चुका था और मेरे पास चांदनी के बहुत सारे सवाल थे। वो आज भी बस में मौजूद थी। जैसे ही वो अपनी मतलूबा जगह पर उतरी तो मैं फिर उसके पीछे उतर गया और उसके करीब गया तो वो खुद ही रुक गई और कहने लगी कि रात सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद तुम आज फिर मेरे पीछे क्यों आए हो। मैंने चांदनी से कहा कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और जिस इंसान से मोहब्बत हो उसे कभी छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसकी गलतियों को संवारा जाता है। और मैं भी तुम्हें गलत रास्ते से निकाल कर एक इज्जतदार जिंदगी देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर चांदनी चौंक उठी और इस तरह मेरी तरफ देखने लगी जैसे मैं कोई पागल हूँ। मैंने चांदनी से कहा कि तुम एक दफ़ा गुनाहों के रास्ते को छोड़ने का इरादा कर लो, खुदा तुम्हारे लिए आसानियाँ खुद ही पैदा कर देगा। मैं तुम्हारा पूरी तरह साथ दूंगा और तुम्हारे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी उठा लूंगा। चांदनी को शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आया था, इसीलिए वो जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा मजाक कर लेते हो। अब तुम एक नाचने वाली रक्कासा से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाओगे। मैंने चांदनी से कहा कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा, बस तुम एक दफ़ा कह दो कि तुम इस रास्ते को छोड़ दोगी। चांदनी कहने लगी कि वो अपनी खुशी से रात भर मुजरा नहीं करती बल्कि मजबूरी की खातिर करती है, और अगर मैं उसकी और उसके घर वालों की जिम्मेदारी उठा लूँगा तो वो क्यों सारी रात गैर मर्दों के आगे नाचेगी। मैंने चांदनी से कहा कि ठीक है, वो मेरे घर वालों का इंतज़ार करे, मैं अपनी बहन को उसके लिए रिश्ता देकर भेजूंगा। चांदनी का घर उसी सोसाइटी में था। मैंने उसका पता ले लिया और कॉलेज चला गया क्योंकि आज मेरा आखिरी इम्तिहान था। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और आगे मुझे अपनी नौकरी का इंतज़ाम करना था। मैंने घर लौटते ही अम्मा को चांदनी के बारे में बता दिया कि वो मुझे पसंद है और इसीलिए मैं खाला की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। अम्मा जो मुझसे नाराज़ थी ये जानकर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ खुद ही ठीक हो गई थी। अम्मा को खाला को देने के लिए एक वजह चाहिए थी और चांदनी की सूरत में उन्हें वो वजह मिल गई थी। मैंने अम्मा को बताया था कि चांदनी रात भर हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती है और मैं चाहता हूँ कि वो ये नौकरी छोड़ दे, इसलिए मैं उसके घर वालों का पूरा खर्चा उठाऊंगा। अम्मी को इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। अम्मा तो खुद भी लोगों की हमेशा मदद किया करती थी। अम्मा ने जब अब्बा को इस बारे में बताया तो अब्बा ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे ताकि मैं अपनी पढ़ाई के बाद अपना कारोबार शुरू कर सकूं। इसीलिए रिश्ता ले जाने में कोई मसला नहीं है और एक यतीम बच्ची को सहारा देना बहुत ही नेकी की बात है। हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि हमारा बेटा यतीम बच्चों और एक बेवा की कफालत की जिम्मेदारी लेगा। अम्मा और फराबाजी अगले ही दिन चांदनी के घर रिश्ता लेकर चले गए और खाला को भी अम्मा ने खुद ही ये जवाब दे दिया कि हमारा बेटा किसी लड़की को पसंद करता है और ऐसे में उसकी शादी आपकी बेटी से जबरदस्ती करवाना मुनासिब नहीं होगा। ये जानकर खाला भी खुद ही खामोश हो गई और उन्होंने खुद ही फराबाजी और अली की शादी की तारीख तय कर देने का कह दिया। अम्मा और फराबाजी को भी चांदनी बहुत पसंद आई थी। मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया था कि सब लोगों को वही सच बताना है जो सच उसने अपने बहन भाइयों को बताया है। फराबाजी के साथ साथ मेरी भी शादी की तारीख तय कर दी गई। चांदनी ने अपना काम छोड़ दिया था और अब वो घरदारी देख रही थी। मेरा कारोबार पूरी तरह जम गया था और मैं चांदनी और उसके घर वालों की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो चुका था। मैंने अपनी मोहब्बत से चांदनी को एक खुशगवार और इज्जतदार जिंदगी दे दी थी जिसकी वो हकदार थी। हम दोनों की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद मैंने कभी उसके मासी को नहीं कुरेदा था और ना ही कभी किसी पिछली गुजरी बात का जिक्र किया था। एक बात मेरे दिल में अच्छी तरह बैठ गई थी कि जब खुदा बंदे के गुनाहों को भूलकर उसे अपनी नेमतों से नवाजता रहता है तो हम इंसान क्यों अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करके किसी दूसरे की गलती या गुनाहों को माफ नहीं कर सकते।